भगवद गीता का अध्याय 11 श्लोक 32 से 42 तक। श्री भगवान उवाच कालो लोकशिकृत प्रवृद्धो लोकोन समाहर्तुमे प्रवृत्तः ऋतित्वा न भविष्यन्ति सवे प्रतिनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ येषो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व शत्रून् भुनश्व राज्यं समृद्धम् मयैवते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवस्य साचिन् द्रोण च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना। संजय उवाच अश्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिर्वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूये एवाह कृष्ण सद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यतिनुरज्यते च रिक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धस्मृगा कस्माच्ते न नम महात्मन् गरीयसे अनंत देवेश जगन्निवास त्वंश सदस्य तत्पर्यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुरांस्तवमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेत्तासि वेद्यं च पर च धाम त्वया ततं विश्वमिन्त्रु शशांक प्रजापतिसिव प्रपितामहश्च नमो सहस्रीकृत्व पुनश्च नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते ते सर्वत एव सर्व अनंतवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो सर्व सखेति मत्वा प्रसभन यदोत हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि विहार्षेया संभोजनेषु एको तत्संशय तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। Bhagavad Gita, chapter 11, verses from 32 to 42. Shri Bhagavan said, I am mighty Kala, the eternal time spirit, the destroyer of the worlds. I am out to exterminate these people. Even without you all those warriors, arrayed in the enemy's camp, shall die. Therefore, do you arise and win glory, conquering foes, enjoy the affluent kingdom. These warriors stand already slain by me. Be you only an instrument, Arjuna. Do kill Drona and Bhishma and Jayadratha and Karna and other brave warriors, who already stand killed by me, fear not. Fight and you will surely conquer the enemies in the war. Sanjay said, hearing these words of Bhagavan Kesava, Arjuna tremblingly bowed to him with joined palms, and bowing again in extreme terror spoke to Sri Krishna in faltering accents. Arjuna said, Lord, well it is, the universe exults and is filled with love by chanting your names, virtues and glory. Terrified Rakshasas are fleeing in all directions, and all the hosts of Siddhas are bowing to you. O great soul, why should they not bow to you, who are the progenitor of Brahma himself and the greatest of the great? O infinite, O Lord of celestials, O abode of the universe, you are that which is existent, Sat, that which is non-existent, Asat, and also that which is beyond both, viz., the indestructible Brahma. You are the primal deity, the most ancient person, you are the ultimate resort of this universe. You are both the knower and the knowable, and the highest abode. It is you who pervade the universe, O one assuming endless forms. You are Vayu, the wind god, Yama, the god of death, Agni, the god of fire, Varuna, the god of water, the moon god, Brahma, the lord of creation, nay, the father of Brahma himself. Hail, hail to you 1,000 times, salutations, repeated salutations to you once again. O Lord of infinite prowess, my salutations to you from the front and from behind. O soul of all, my obeisance to you from all sides indeed. You, who possess infinite might, pervade all, therefore, you are all. The way in which I have importunately called you, either through intimacy or thoughtlessly, Ho Krishna, Ho Yadava, Ho Comrade, and so on, unaware of the greatness of yours, and thinking you only to be a friend, and the way in which O Sayutha, the infallible, you have been slighted by me in jest, while at play, reposing, sitting or at meals, either alone or even in the presence of others. For all that, O immeasurable Lord, I crave forgiveness from you. श्री भगवान बोले मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही है। आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है।
हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप है। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे स्खे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।